पहले प्रोजेक्टाइल की बेसिक रिवीजन कर लें एंड देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो कॉम्पिटिटिव के लिए हमने दो पॉइंट्स पढ़ने हैं, दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम लेंगे वेयर द बॉडी इज थ्रोन एट सम एंगल एंड इट ग्राउंड से फेंका वापस ग्राउंड पे आ गई। सेकेंड केस वी विल डू इज व्हेन द बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट, कि अगर हम हाइट से थ्रो करें। बेसिकली हम लेंगे कि इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन एंड कैन बी सॉल्व्ड एज टू वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स, कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को अलग अलग सॉल्व करेंगे। बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं हमने। जब तक एयर रेजिस्टेंस नहीं दी वी विल नॉट कंसिडर इट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अज्यूम करेंगे कोई फोर्स नहीं लग रही। देयर इज ओनली वन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग एंड दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ग्रेविटी। बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल मोमेंटम दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो अगर प्रोजेक्टाइल को हमने कहना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, वी से दैट अ बॉडी इज projectile if it is given some initial velocity and then allowed to move under the effect of gravity alone. A body which is given some initial velocity and then allowed to move under gravity. And then allowed to move under gravity. Because हम gravitational force को ले रहे हैं, so only vertical force acts. So first point is only vertical force acts. Horizontal momentum and horizontal velocity will be constant throughout the path. Oblique projectile में भी applicable है and horizontal projectile में भी are constant. Two-dimensional problem and solved as two one-dimensional problem. Because दो method है, या तो आप इसे two one-dimensional problems वे में solve करो or you use vectors. So vectors में थोड़ी सी problem सबको रहती है, so we solved it as two one-dimensional problem. Solved as two one-dimensional problems. Now, because we are saying that it's a 2D motion, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को सॉल्व करने अलग अलग सॉल्व करने का मतलब है कि जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे विल नॉट टेक इनटू अकाउंट द वर्टिकल फैक्टर्स। तो अगर मैं नॉर्मल केस लेता हूँ जो ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल का, जो बॉडी इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी, कि अगर मैंने बॉडी को थ्रो किया with some velocity u, this is the path followed by the body। हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है u at some angle थीटा।
Throughout the motion सिर्फ एक ही acceleration है g which is acting in vertical direction and horizontal acceleration is 0. जो हमने basic calculation करनी है, we have to find the maximum height to which the body will move, the horizontal range, time taken to reach the highest point, total time of flight. We have to find velocity at any point. कि अगर मेरे को यहाँ पे velocity बतानी है v, what will be the value? Angle which velocity vector makes with horizontal अगर initial angle theta है, and the change in momentum which takes place throughout the path. अब because हमने horizontal और vertical direction को अलग-अलग consider करना है, we make the components of initial velocity. Initial velocity के दो components बनेंगे. The two components of initial velocity are horizontal direction में it's u cos theta. In vertical direction में it's u sin theta. अगर हम horizontal direction consider करें, बॉडी को यहाँ से थ्रो किया, कंसिडर्ड इट्स ओरिजिन, किया ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है. आफ्टर टाइम t the body is at point p and the coordinates of this points are xy. In vertical distance traveled is y and horizontal distance traveled is x, and the time taken to move from origin to point p is t. So पहले हम सिर्फ o से p तक फोकस करते हैं. For motion from o to p, initial horizontal velocity is u cos theta. Because force is a vertical direction में एक कर रही है, तो horizontal acceleration is 0. Horizontal displacement O से P तक, we say x is the horizontal displacement, y is the vertical displacement. So horizontal displacement is x and time taken is t. If we use the relation s is equals to ut plus rvd square, because ये zero है acceleration, so we can simply say that x is equals to u cos theta into t, or we can say it's horizontal velocity into time. Whereas if you consider vertical direction, then initial velocity is u sin theta, acceleration is minus g, time is t, displacement is y. So you can say y is equals to अगर हम ये t की वैल्यू पुट कर देंगे तो you will get the equation of trajectory. Equation of trajectory basically shows that what is the path followed. तो इसमें जो equation of trajectory हमारी solve करके आती है, this you have done in class already, x tan theta minus, so एक तो equation याद रखनी है MCQs के लिए. This is one form. Whenever you have equation of the form ax minus bx square, because ये वही form है that y is equals to ax, a की जगह tan theta, g over 2 u square cos का theta की जगह b. So whenever you have equation of the form y is equals to ax minus bx square, this is an equation of parabola. So we say path followed is parabolic. ये तो एक फॉर्म हो गई इक्वेशन की, बट इसको हम दूसरी फॉर्म में भी याद रखेंगे. Another form of equation of trajectory is जो आपको फॉर्मूला याद रखना है,
Y is equals to R is the horizontal range. X tan theta minus 1 minus x by r. अगर हम बाकी फॉर्मूला लिख लें, से हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जो ड्राइव किया था, दैट वाज u स्क्वायर by g, or you have also written it as u square sin 2 theta by g. But इस फॉर्म में याद रखने की, this you have to remember, but it's better if you remember this formula as because this will help you solve numerical where the body is not moving under gravity. There can be some other acceleration also. So रेंज का ये फॉर्मूला याद रखो कि range depends on horizontal velocity, vertical velocity and acceleration due to gravity. अगर हम इस फॉर्मूला को देखें, we say range is maximum when sin 2 theta is maximum. Range is maximum when sin 2 theta is maximum. Means theta is 45. If sin 2 theta is 1, 45 और पाई बाय 4. अगर थीटा को पाई बाय 4 पुट करें तो जो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आएगा for a given velocity, maximum range is u square by g. Second point you have to remember is range is always same for complementary angles. मतलब अगर दो angles का sum 90 है तो range will be same. Implies if theta 1 plus theta 2, then horizontal range is same for both angles. कि 30 और 60 के लिए रेंज सेम होगी, 37 डिग्री 53 डिग्री के लिए सेम होगी, then horizontal range is same. तो horizontal range is u square sin 2 theta by g या 2ux uy by ay. इसको कैसे यूज करना है, दिस विल यूज सम एग्जांपल्स करके देख लेंगे अभी. Another point you have to remember is कि अगर complementary angles हैं तो range same होगी, but this formula is applicable for oblique projectile which is thrown from ground. अगर हमने बॉडी को किसी हाइट से थ्रो किया है, then range will not be maximum for theta is equals to 45. वो different angle आ जाएंगे. ये सिर्फ तब लगा रहे हैं जब बॉडी को ग्राउंड से थ्रो किया and it returns to ground. Next is the maximum height. Maximum height का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, इट्स u square sin square theta by 2g. Again you can remember it as uy square by 2ay. अगर दो, हमने कहा कि बॉडी को हमने थ्रो किया एंड उन दोनों एंगल्स के लिए रेंज सेम है बट मैक्सिमम हाइट अलग अलग आएगी. We say if horizontal range is same for given velocity, it implies theta 1 plus theta 2 is 90. पर रेंज जो आएगी it will be, in one case it's u square sin square theta by g 2g, and in second case it's u square
साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g। सो आप दो वे में लिख सकते हो, आइदर यू कैन से h1 प्लस h2 बिकॉज दिस इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। कि अगर दो एंगल्स के लिए रेंज सेम है तो उस केस में जो मैक्सिमम हाइट आएगी का सम आएगा दैट्स u स्क्वायर बाय 2g, और जो h1 बाय h2 की रेशियो आएगी दैट भी tan स्क्वायर थीटा। अगर रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन पूछें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए। रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ये फॉर्मूला क्या था, r इज इक्वल्स टू रेंज और मैक्सिमम हाइट में 4h cot फोर theta. एच कॉट थीटा। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो एमसीक्यूज के अंदर कि r इज इक्वल्स टू 4h कॉट थीटा। सो बेसिकली अभी तक हमारे पास क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड करती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों पे, पर जो मैक्सिमम हाइट है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी। मतलब एक कार रेस्ट से आपने उसमें से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, या कार हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो जो चेंज आएगा उससे वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में आएगा, इसलिए मैक्सिमम हाइट वेरी नहीं करेगी। और अगर थीटा 90 है तो जो एच मैक्स की वैल्यू आएगी दैट्स u स्क्वायर बाय 2g। अब नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द टाइम ऑफ लाइट। Normally we say it's 2u sin theta by g, total time. Or you can write it as 2uy by ay. So it also depends only on vertical velocity and vertical acceleration. Time of ascent या descent पूछेंगे तो it's half of that. और uy upon ay. प्रोजेक्टाइल मोशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना पड़ेगा दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी अगर आप लोगे, अगर इधर वेलोसिटी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है तो हर जगह पे u cos थीटा ही होगी। u cos थीटा, बट जो वर्टिकल वेलोसिटी है इधर मैक्सिमम होगी, and as you move up the magnitude of vertical velocity goes on decreasing. Highest point पे vertical velocity is 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, इट्स अगेन u sin थीटा। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट होगी क्या आफ्टर टाइम t, अगर मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है एट एनी पॉइंट p, तो वी से दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यहाँ पे वही होगी जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। सो vx इज इक्वल्स टू ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा, आफ्टर टाइम t बतानी है
तो we use the relation. There's acceleration negative में, this is Vy. Vertical velocity changes with time. पहले vertical velocity का magnitude कम हो रहा है, highest point पे 0 हो गया and then it increases. अगर velocity बतानी है तो it's Vxi plus Vyj. That means u cos theta I cap u sin theta minus gt into j cap. Magnitude इसका बताना है तो we can say under root of u cos theta का square Vx square plus Vy square. And angle with horizontal. This is important MCQs के लिए. And angle with horizontal is tan beta is equals to Vy by Vx. Means u sin theta minus gt over u cos theta. Angle with horizontal means आपने throw किया है इस point पे जो angle बन रहा है this beta. This will be Vy upon Vx. ठीक है, ये important point है. अब इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं? फर्स्ट जो दो जनरल कैटेगरीज पहले दो करके देखते हैं. Either they will give you the equation of trajectory दी होगी and you have to find the horizontal range, maximum height, initial velocity, कुछ भी निकालने के लिए बोल दें तो you can solve it using that. अब अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दी है तो यहाँ तो वो टाइम की फॉर्म में दी होगी, यहाँ वो हमें दिया होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो फर्स्ट जनरल क्वेश्चन कैन बी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए. If equation of trajectory is y is equals to ax minus bx square, you find everything from it. You find the angle of projection, you find range, you find time of flight, maximum height. तो इससे हम कैसे निकाल सकते हैं? If you are given y is equals to ax minus bx square, एक तो है कि आप इसको जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से कंपेयर कर लो, कंपेयर करके यू फाइंड द वैल्यूज. या आप इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज में रिलेशन निकाल लो. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज में रिलेशन निकाल लोगे तो यू कैन सॉल्व इट. इस केस में अगर पूछा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है तो कैसे निकालोगे? y is equals to ax minus bx square. How will you find the initial velocity? या कुछ भी निकालना है, रेंज निकालनी है तो कैसे निकालोगे? इक्वेशन को समझने की जरूरत है. हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया इस फॉर्म में. ये मेरा ओरिजिन है जहां से मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया. तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0. बॉडी रीचेस दिस पॉइंट. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर 0. हाईएस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर बाय 2 और एच. ठीक है, अब इससे कैसे सॉल्व हो सकता है? अगर मैं ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर दूं, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू r. गिवन बॉडी लैंड्स इन द ग्राउंड तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू r. अगर इसे सब्स्टिट्यूट करें तो 0 इज इक्वल्स टू
means AR is equals to BR square. The equation of trajectory से you can find the range. Range is A by B. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिए हैं r/2 और h. Substitute y is equals to h. इस इक्वेशन में दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर दो. h is equals to a r/2 minus b. So you get ar/2 minus b r square by 4. And you know the value of r. R is a by b. So इसे सॉल्व करोगे तो दिस इज a square by 2b. So this gives you the maximum height h. अच्छा maximum height पता है और r पता है. You have the relation r is equals to 4h cot theta. So you get the value of angle of projection. So theta is tan inverse A. Initial velocity कैसे निकाल सकते हैं? If you have to find the initial velocity of projection, इस equation से y is equals to ax minus bx square. You have to find initial velocity of projection. चलो जरा इसको solve. Let's see क्या आता है answer. Because then you will have another method of doing all these things. सिर्फ initial velocity निकाल के देखो क्या आती है. Initial velocity, acceleration, relation between initial velocity and acceleration. अच्छा मेरे को अगर ये गिवन है velocity in vertical direction क्या होगी? dy by dt. dy by dt means a तो कांस्टेंट है. डिफरेंशिएशन ऑफ x is dx by dt minus bx square. x square के डिफरेंशिएशन 2x into dx by dt. dy by dt is vertical velocity. dx by dt is horizontal velocity. ये क्लियर है सबको इक्वेशन? अगर मैं इनिशियली रिलेशन पूछूं प्रोजेक्ट किया था तो x भी 0 था y भी 0 था तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया? vy is equals to avx.
This is tan theta. And you also know that अगर मैं इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, Vy is this value, AVX minus 2BX VX. इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी AVX की? डिफरेंशिएशन ऑफ AVX. A कांस्टेंट है, VX कांस्टेंट है या वेरिएबल है? VX वेरिएबल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना VX. यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेरी करती है, नहीं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, AVX इज कांस्टेंट. इस टर्म में इसके डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? BX स्क्वायर 2BX VX. कांस्टेंट कौन कौन सी टर्म है? 2B एंड VX. ये तो कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. तो बेसिकली x की डिफरेंट VX dx by dt. तो यहां से आप एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन निकाल सकते हो. अगर मैं पूछूं इनिशियल वर्टिकल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेरी कर रही है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट है बिकॉज VX कांस्टेंट है. तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगी हर पॉइंट पे सेम. किसी भी पॉइंट पे आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो इट कम्स आउट टू बी सेम बिकॉज AVX की डिफरेंशिएशन 0 है, माइनस 2B VX भी कांस्टेंट है इनटू dx by dt. बिकॉज ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही आएगी. अब ये देखो, ये हमने पहले tan थीटा एक तो इस मेथड से निकाला. पहले जो हमने tan थीटा निकाला था वो r is equal to 4h cot थीटा से निकाला था. That also comes out to be same. Another method is just comparing. इसको कंपेयर कर लो इस इक्वेशन से और कुछ भी ना करो. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो इधर ax है, इधर x tan थीटा. दैट मींस tan थीटा इज इक्वल्स टू a. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे tan थीटा a है. b किसके इक्वल है? b. b इज यहां से अगर देखें तो ये सारी टर्म b है. इन दोनों को कंपेयर करें तो b इज 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मतलब ux स्क्वायर. तो ux स्क्वायर कितना आ गया? g by 2b स्क्वायर. क्लियर है यहाँ तक? तो g by 2b स्क्वायर इज ux स्क्वायर. अब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? a टाइम्स vx. a टाइम्स vx मींस a स्क्वायर इंटू g स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर. तो ux स्क्वायर पता है, vy स्क्वायर पता है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, दैट विल गिव यू द वर्टिकल वेलोसिटी.
सो बेसिकली अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता है, आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड एनी वैल्यू जो आपकी रिक्वायर्ड है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो. सेकेंड इज कि अगर आपको इस फॉर्म में ना दिया हो, आपको इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स अलग अलग से दी है, मतलब रादर देन गिविंग देम कंबाइंड आपको अलग से दिया है. लाइक आपको गिवन है अगर से एक्स इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 2t y इज इक्वल्स टू, ऐसे कुछ इक्वेशन दिया है, या जनरल करना है तो यू कैन से 80 y इज इक्वल्स टू, ये दो इक्वेशंस दे दी. मैं आपको इससे बोलूं कि आप इससे सारी वैल्यूज निकालो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रेंज कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, सारी वैल्यूज अगर कैलकुलेट करनी है. तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज कि आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दो. x की डिफरेंशिएशन विल बी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस इज a. y की डिफरेंशिएशन करोगे तो दिस गिव्स द वर्टिकल वेलोसिटी, मींस b माइनस 2ct. ये जनरल हो गया. ये इंडिकेट कर रहा है कि जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, और जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है. तो इसे इनिशियल वेलोसिटी अगर मेरे को लिखनी है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, तो ux इज a, यहाँ पे t को 0 पुट करोगे तो uy इज b. इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan थीटा, u sin थीटा ओवर u cos थीटा, या uy ओवर ux. सो ये इनिशियल एंगल हो गया. tan थीटा इज tan इनवर्स b बाय a. मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी लिखना है तो इट्स ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूं, एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0. वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो इसकी डिफरेंशिएशन b माइनस 2ct की, और b माइनस 2ct की डिफरेंशिएशन क्या आ रही है, -2c. नेगेटिव साइन सिर्फ सिग्निफाई कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में. अब आप देखो ये तीनों वैल्यूज अगर मेरे को पता है, मतलब दो ये वैल्यूज, तो आप सारे फॉर्मूलाज डायरेक्ट लिख सकते हो, बिकॉज इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, नेगेटिव साइन ओनली सिग्निफाइज द डायरेक्शन. अगर मैं आपसे रेंज पूछूं तो रेंज इज 2ux uy बाय ay. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में b अपॉन 2c. सो रेंज विल बी ab बाय c. अगर मैक्सिमम हाइट पूछा जाए तो h uy स्क्वायर बाय 2ay. uy स्क्वायर मींस b स्क्वायर, 2ay is 4c. Maximum height and time of flight 2uy by ay means 2b by 2c. So b by c. So एक बार ही आपको पता चल जाए कि इनिशियल वेलोसिटीज क्या है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है नीट और जेई मेंस में, कि आपको x की और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम दी है,
आप पहले दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो और इनिशियल एक्सेलरेशन, एंड देन यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट इन फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करके यू कैन डू द कैलकुलेशन। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बेसिक यही फॉर्मूलाज हैं। इसके क्वेश्चन देखो। A bullet is fired in horizontal direction from a tower while a stone is simultaneously dropped from a same point. हमें दिया bullet is fired in horizontal direction and simultaneously a stone is dropped. एक बुलेट इधर फायर किया, स्टोन को जस्ट ड्रॉप कर दिया। दोनों एक साथ पहुंचेंगे अलग अलग एंड रीजन। दोनों पे एक्सेलरेशन सेम एक्ट कर दिया है, डिफरेंट एक्ट कर दिया है। बेसिकली जो बुलेट है उसने इधर मूव करना है, बुलेट का ये पाथ होगा और स्टोन सीधा नीचे गिरेगा। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा या डिफरेंट विद रीजन? दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में, बिकॉज बुलेट को भी थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली, बुलेट को भी हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, स्टोन को ड्रॉप किया है, मतलब दोनों को इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी हमने नहीं दी, तो इसे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो फॉर बोथ। दोनों की एक्सेलरेशन जो है, दोनों ग्रेविटी में मूव कर रहे हैं, सो एक्सेलरेशन इज सेम फॉर बोथ, जी डाउनवर्ड्स। बुलेट इस पॉइंट से यहां तक आई, स्टोन नीचे आया, दोनों की जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दैट इज सेम। सिर्फ यह है कि बुलेट की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी है और स्टोन की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसे एस वाई सेम फॉर बोथ। तो दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, अगर मैं ये इक्वेशन यूज करूं, इट विल कम आउट टू बी सेम, बिकॉज दोनों की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम थी। दोनों को सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी सेम थी, वर्टिकल एक्सेलरेशन सेम थी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी सेम थी, तो जो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड है दैट विल आल्सो कम आउट टू बी सेम ओनली। So bullet and stone will reach the ground simultaneously. If T be the total time of flight of a current of water and H be the maximum height attained by it from point of projection, then H by T is, हमें दिया T is the time of flight and H is the maximum height, तो दोनों में relation क्या बनेगा? We have maximum height as इसको ऐसे लिख लो, maximum height is and time of flight is 2u y by g। तो अगर हम रेशियो लें दोनों की, uy gets cancelled, you get uy by 4, means u sin theta by 4. So h by t is u sin theta by 4. तो इसको थीटा में याद रखने की जगह ऐसे याद रखना, बिकॉज इट विल बी इजियर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। If a baseball player can throw a ball to a maximum distance d over the ground, maximum vertical height to which he can throw it, ball have same initial speed in each case. हमें दिया he can throw a maximum horizontal distance of d. R max जो होता है maximum range, it's u square by g.
And for same velocity, maximum height is, तो ये हमें given है d. This will be d by 2. So if he can throw a maximum horizontal distance of d, vertically he can throw a maximum distance of d by 2. What is the average velocity of projectile between instant and crosses half the maximum height? It is projected with velocity u at an angle theta with horizontal. हमने कोई height ली half the maximum height. What is the average velocity between A and B? Average velocity of the body between 2 points A and B. Average velocity क्या आएगी? कैसे करें इसको? आप ये समझो ना, इस पॉइंट से यहाँ तक आप इसे एक अलग प्रोजेक्टाइल मान लो, ठीक है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सब जगह सेम ही है, यहाँ पे ux, यहाँ पे भी ux. इधर वर्टिकल वेलोसिटी लेट इट बी vy, ये भी vy. एवरेज वेलोसिटीज displacement is ab and t is time taken to move from a to b. Now ab is range of this projectile. अगर मैं यहीं से projectile को मानूं कि यहाँ से start हुई तो ये range है, और range का formula and time of flight is 2vy by g. तो 2vy by g cancel हो गया. प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी दो पॉइंट्स होंगे जिनकी हाइट सेम है, मतलब नॉट ओनली हाफ द मैक्सिमम हाइट, कोई भी दो पॉइंट्स ले लें जिनकी हाइट सेम है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी दैट इज ऑलवेज यू cos थीटा, बिकॉज जो 2vy और gi हमेशा कैंसिल हो जाना, तो एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज कम्स आउट टू बी सेम. An artillery piece which consistently shoots its shell with same muzzle speed has a maximum range r. To hit a target which is r by 2 from the gun and on the same level, at what elevation angle should the gun be pointed? हमें दिया एक आर्टिलरी गन है जिसकी for a given missile speed range is r. Maximum range is when theta is 45. This is u square by g. हमने बताना है what should be angle for range to be half of it. For range to be half of maximum range. That means r dash is r by 2. और u square by 2g. तो u square by 2g comes out to be, range का फॉर्मूला लगा दो. That means sin 2 theta is half. Means 2 theta is pi by 6.
15 डिग्री। अब इसमें बिकॉज 15 नहीं है, बट वी नो दैट रेंज इज सेम फॉर 15 एंड 75, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है। तो ये आंसर आ जाएगा, थीटा इज 75 बिकॉज रेंज इज सेम फॉर 15 एंड 75। तो हमारा आंसर आया था 15, तो हम 75 लिख देंगे। A cannonball has a range r on horizontal plane. If h and h dash are the greatest height in two paths, then which of the following is possible? हमें दिया कैनन बॉल की रेंज आर है। एक बार वो ऐसे गई, एक केस में हाइट h, एक केस में h डैश। हमने रेंज h और h डैश में रिलेशन बताना है because the range is same for complementary angles. So if we write h dash will be sin square 90 minus theta is cos square theta. अब आंसर से हमारे को हिंट मिलता है बिकॉज ज्यादा तीन ऑप्शंस में एच एच डैश निकाला हुआ है, तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूं दैट विल बी 2u², सॉरी, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स u4 sin square theta cos square theta by 4g²। रेंज का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी। तो मैं इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, तो विल गेट नियर टू दैट आंसर। क्या रिलेशन बनेगा? एच एच डैश का अंडर रूट एच एच डैश क्या होगा? अंडर रूट एच एच डैश, बिकॉज अंडर रूट एच एच डैश है दो पार्ट्स में। यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2g। तो इन दोनों में रिलेशन क्या बना? वी कैन से दैट r इज 4 टाइम्स अंडर रूट एच एच डैश। ये आप याद भी रख सकते हो रिजल्ट। If horizontal range is same, then maximum height and horizontal range are related as r is equals to 4 under root h h dash। नोट्स में दिया भी था जो मैंने सिनॉप्सिस भेजे थे। A projectile is thrown with a velocity of 20 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal. After how much time velocity vector makes an angle of 45 degree with horizontal in upward direction? हमें दिया एक बॉडी को 60 डिग्री से थ्रो किया है, कितने टाइम के बाद ये एंगल 45 डिग्री बनेगा? इनिशियल एंगल अगर 60 है। tan बीटा का हमारे पास जो फॉर्मूला था वेलोसिटी का एंगल एट एनी टाइम, इट्स u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। हमें दिया बीटा इज 45, tan 45 इज 1, मींस u sin थीटा माइनस gt। एक स्टेप और लिखना है तो लिख सकते हो। अब हमें u दिया 20, थीटा दिया 60। So you can find the value of t from it.
कि 20 sin 60 minus 20 cos 60 upon 2, 10. So t comes out to be this is so root 3 minus 1. Clear है? A large number of bullets are fired in all directions with the same speed v from ground. What is the maximum area on the ground on which these bullets will spread? हमने यहाँ से फायर की सारी डायरेक्शंस में, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है कवर कर सकती है, दैट इज रेंज. तो ये कितना एरिया हो जाएगा? दिस विल बी पाई आर स्क्वायर, where r is the range. So area in which bullets can be fired. Where r is the range. And range is so pi u4 by g square. B part. Two stones are projected with same speed but making different angle with horizontal range are equal. For one, angle of projection is pi by 3. तो एक के लिए 60 है तो दूसरे के लिए 30. फर्स्ट केस में मैक्सिमम हाइट y1 है, सेकंड केस में बतानी है. If theta is 60 तो y1 is in second case में it's 1/3. So ये क्वेश्चंस देखना है इसके एंड इसकी थ्योरी पढ़ लो बिकॉज कल प्रोजेक्टाइल ही आगे करेंगे हम. बट इसके इसीलिए सिर्फ थोड़े से एक बारी फॉर्मूले बता दिया, बट नोट्स में से सारे पढ़ के देख लेना.